I think that you have learned all the stages of Erickson's theory of psychosocial development. एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के जितने भी चरण हैं वह आपने लर्न कर लिए होंगे। इन्हीं के बारे में आज थोड़ा डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि एरिक्सन की थ्योरी क्या कहती है, तो साइको सोशल डेवलपमेंट के बारे में। तो इसी बारे में आज स्टडी करेंगे हम कि साइको सोशल डेवलपमेंट। एंड यू नो वेल दैट अबाउट Erikson was the disciple of Freud, and Freud gave theory of psychosexual development. But Erikson did not go to the psychosexual development. He went or he studied about psychosocial development. एक मनुष्य का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका मनोसामाजिक विकास कैसे होता है, he gave it. Then we will discuss about its stages, its virtues, and educational implications. Okay, now Erik Erikson. Erik Erikson was a student of Freud and was greatly influenced by the latest theories of personality development. However, unlike his predecessor, Erikson gave a great deal of importance to the social development in a person's psychological development. First, you have to keep in your mind the name of Freud, F-R-E-U-D, in Hindi and English. You have to pronounce same, Freud, Freud, fry बोलना, fry करना, उसमें ड और लगा देना, Freud. Another word is the predecessor and successor. You know that predecessor में उससे पहले वाला and successor में आने वाला. जैसे सपोज मैं कहूँ 3 का predecessor हुआ क्या आपका 2, इसका successor हुआ 4. तो इसी तरह से this word you have to keep in mind. As Freud discussed about of psychosexual development, but Erik Erikson studied about psychosocial development, and he gave that what impact was on psychosocial development of the child at the end of his death. तो किस तरह से मनुष्य का मनोसामाजिक विकास होता है, उसका समाज सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है और वह कैसे आगे बढ़ता है, इसके बारे में उसने अध्ययन किया। ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दैट ही हैज गिवन 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इसने एरिक एरिक्सन ने ये कहा कि मनुष्य के जो मनोसामाजिक विकास के 8 चरण होते हैं, 8। दैट मीन there are 8 stages of psychosocial development in Erikson's theory. Okay, now we will study one by one. The first stage is that is from birth to 1.5 years, and its name is just trust versus mistrust. Trust versus mistrust. In Hindi, it is known as Vishwas बनाम अविश्वास. Okay, विश्वास बनाम अविश्वास. तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में मैम कर रहे हैं और हिंदी में मैं उसका आपके ट्रांसलेशन के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक वर्ड है रिलाई ऑन। रिलाई ऑन मीन भरोसा करना, क्या रिलाई ऑन। ओके, इन्फेंट्स मस्ट रिलाई ऑन अदर्स फॉर केयर। शिशुओं को देखभाल के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। यू नो इट वेरी वेल। एक शिशु जब जन्म लेता है तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता। ही इज टोटली डिपेंडेंट, ही और शी इज टोटली डिपेंडेंट फॉर नर्सिंग, फॉर केयरिंग, for each and every task. Okay, next one is consistent and dependable caregiving and meeting infant needs leads to a sense of trust. लगातार और भरोसेमंद देखभाल और शिशु की जरूरतों को पूरा करने से विश्वास की भावना पैदा होती है। Now this is the trait, उस गुणों में चले गए हम, क्या कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट केयरगिविंग। यदि हम उसको लगातार पूरा अच्छी तरह उसकी केयर करें, देख रेख कर रहे हैं और एक शिशु की पूरी आवश्यकता को पूर्ति करते जा रहे हैं, तो उससे उसमें जो है ट्रस्ट पैदा होगा, विश्वास पैदा होगा। नेक्स्ट है आपका infants who are not well cared for well developed mistrust. यस, तो यहाँ पर हमने जो है 2 चीजें की थी, वन इज द ट्रेट, अनदर इज द अपोजिट। यदि उसकी हम केयर नहीं करेंगे, उसकी देख रेख नहीं करेंगे, उसको अच्छी तरह से नर्स नहीं करेंगे,
नर्सिंग में टेक केयर करना, खिलाना पिलाना, देखभाल करना, तो इससे उसमें क्या होगा, अविश्वास पैदा होगा या मिसट्रस्ट। Therefore, this is the stage of trust and trust versus mistrust. The trust built here is carried at later stages in the life into relationships with the people, which offers a sense of security in times of threats. If the care has been inconsistent or unreliable or unpredictable, infants develop anxiety, mistrust, and suspicion. In a long term, they lose confidence in people around them and themselves. तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि बच्चे में जो है ट्रस्ट होगा, कैसे होगा, उसकी पूरी केयर से, उसकी पूरी देखरेख से। यदि हम केयर और अच्छे से उसके नर्सिंग पालन पोषण नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसमें बच्चे में एंजाइटी, चिंता उत्पन्न हो जाएगी, मिसट्रस्ट हो जाएगा और शक होगा, सस्पिशियस। तो आने वाले समय में वो अपने कॉन्फिडेंस को, विश्वास को लूज करता जाएगा। तो इसका बेसिक मृत्यु जो है आपका यहाँ पर जो है, जो उसका ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में था, ये जो है खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज है आपका, नेक्स्ट स्टेज 2, 1.5 to 3 years, autonomy versus shame and doubt. तो दूसरी स्टेज है या दूसरा चरण है, इस चरण का नाम दिया है स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। शर्म और संदेह, इसी को पूरे जितने भी हमारे जो स्टेजेस हैं उनको आपने 1 by 1 ही लर्न करना, क्योंकि बच्चे का विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक आगे होता जा रहा है और यहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इसके अंतर क्या क्या होगा? Children are discovering their own independence. यस, फर्स्ट इन्फेंसी में क्या था, पूरा टोटली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, टोटली डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर बच्चा अपना इंडिपेंडेंसी खोजना शुरू कर देता है 1.5 से 3। बच्चे अपनी स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं। Next, those given the opportunity to experience independence will gain a sense of autonomy. यस, वहां हमने केयर किया, बच्चे की देखरेख की, उससे उसमें ट्रस्ट पैदा हुआ। ट्रस्ट पैदा होने के बाद यहाँ बच्चा अपना इंडिपेंडेंटली बनने की खोज कर रहा है और हमने उसको इंडिपेंडेंट वर्क कर, जैसे खिलौनों के साथ खेलना, ये करना, अपने आप ये करना, ये सारी चीजें जो हैं, ये उससे उसमें क्या आएगी, ऑटोनॉमी। यस, आई कैन डू, ऑटोनॉमी, दैट मीन मेरे में ये योग्यता है। तो जिससे स्वतंत्रता का अनुभव करने का अवसर दिया गया है, उसे स्वायत्तता की भावना प्राप्त होगी। ठीक है, यदि हमने उसको इंडिपेंडेंट रख दिया तो इंडिपेंडेंट करने, अपनी इंडिपेंडेंटली अपना जो है खिलौनों के साथ खेलना या जो भी है ये हमने, तो उसके कहे उसमें कौन सी भावना होगी, ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमस से ही ऑटोनॉमी वर्ड बना है। Next, children that are overly restrained or punished harshly will develop shame and doubt. Yes, student, I always used to say, मैं हमेशा कहा करता हूँ, क्या कहता हूँ कि बच्चे को इंडिपेंडेंट रहने दो, उसको खेलने दो, ज्यादा डांटना नहीं, ज्यादा मारने, ये मत करो, वो मत करो, ये तो ये हमारी टेंडेंसी बन जाती है। अरे ये तो बच्चा है, तो अभी कुछ नहीं कर सकता। दैट मीन वी आर मेकिंग हिम और हर डिपेंडेंट एंड आवर ड्यूटी इज टू मेक हिम और हर इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए क्या होगा, यदि हम उसमें बार बार उसको ताड़ते जाएंगे, गुस्सा करते जाएंगे और उसको बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, तो उससे क्या होगा, बच्चे में जो है शेम, शर्म और संदेह की भावना विकसित ओहो। तो उससे क्या होगा, अगली स्टेज में उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो एक तो पॉजिटिव ट्रेट के कारण, दूसरा नेगेटिव ट्रेट के कारण। Being successful in this stage will lead to the development of the virtue of will. When ample support and encouragement are offered, they become more independent, confident, and secure in their own ability to navigate their own environment. तो इस तरह से वह सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंटली काम करता जा रहा है। तो उसमें जो गुण है, कौन सा गुण, कौन सा, विल का, विल, इच्छा जिसे कहते हैं, इच्छा शक्ति, यह गुण उसमें डेवलपमेंट होगा। यदि इस तरह से उसको हम एनकरेजमेंट देते गए तो वह क्या, ज्यादा इंडिपेंडेंट बनता जाएगा, कॉन्फिडेंट बनता जाएगा और उस अपने आप को सिक्योर करेगा किसी भी एनवायरनमेंट में या वातावरण के साथ नेविगेट करने। तो इसलिए तो जो आपका जो दूसरा स्टेज है, दूसरे स्टेज में फर्स्ट स्टेज था आपका ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है, और दूसरा स्टेज हो गया आपका ऑटोनॉमी। ट्रस्ट से ऑटोनॉमी डेवलप होगी, मिसट्रस्ट से सेम और डाउट डेवलप होगा।
तो इस तरह से अब बच्चा जो है 3 साल पूरे कर लिए, तीसरी स्टेज में प्रवेश कर चुका है। Stage 3, 3 to 5 years, initiative versus guilt. पहल बनाम दोष, किसी काम को शुरू करने की पहल करना, इनिशिएट लेना। Children are exposed to the wider social world and given greater responsibility. बच्चों को व्यापक सामाजिक दुनिया से अवगत कराया जाता है और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। 3 से 5 साल जो है धीरे धीरे आप उनको अल्फाबेट्स, लेटर्स, टॉयज के साथ जो है काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और इंडिपेंडेंटली उनको करने भी देते हैं। तो उससे जो है वो इनिशिएटिव, अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी करूँ जो है, ठीक। तो उससे क्या होगा, Sense of accomplishment leads to initiative, whereas feelings of guilt can emerge if the child is made to feel too anxious or irresponsible. उपलब्धि की भावना पहल की ओर ले जाती है। ऑलवेज थिंक, यदि हम किसी बच्चे को जो है इनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और वो आगे अच्छा काम कर रहा है, हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो इनिशिएटिव लेगा। यस यू कैन डू इट, कांट नहीं, डोंट से कांट, ऑलवेज से कैन डू। और उससे उसमें क्या कौन सी भावना डेवलप होगी, यस कि मुझे और भी शुरुआत कुछ और करनी चाहिए। लेकिन यदि हम बार बार जो है उसको टोकते गए, रोकते गए, मिसट्रस्ट से आपका जो है डाउट और सेम हुआ, ठीक है, तो उससे उसमें गिल्ट शुरू हो जाएगा या दोष शुरू हो जाएगा और वह क्या करेगा, अपने आप को गैर जिम्मेदार महसूस करेगा। When our children have a chance to balance their initiatives with the readiness to work with others, the virtue of purpose emerges from this. Success at the stage helps children feel confident and capable of leading others for a collective goal. Failure to acquire the virtues of this stage leaves them with a sense of self-doubt, guilt, and lack of drive. तो इस तरह से जब हम मिस्ट में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में जाते हैं, तो ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के बाद जो है सीधे वो आगे अगली स्टेज में चला जाता है। तो इसीलिए उसकी बैलेंस करना, इनिशिएटिव टू रेडीनेस टू वर्क विद अदर्स, दूसरों के साथ भी काम करने के लिए तैयार, और इससे क्या होगा, एक वर्च्यू, वह गुण उत्पन्न होगा, दैट इज कॉल्ड एज ईगो। और यह सफलता जो बच्चे के आगे के लिए कॉन्फिडेंट बनाने में, यस मुझे परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि जब इनिशिएटिव लेगा तभी परिश्रम करेगा। जैसे अभी तो ये उसकी बात कर रहे हैं हम जो है थर्ड स्टेज की, और ये जीवन भर चलता रहता है। ये किसी को अप्रिशिएट करते जाओ, मोटिवेट करते जाओ, तो वो ज्यादा काम करता जाता है और अच्छा करने की कोशिश भी कर सकता है। लेकिन यदि हम रोक टोक करते जाते हैं तो हीन भावना आ जाएगी, आगे धीरे धीरे करके क्या आ जाएगी, हीन भावना, ठीक है, गिल्ट से। तो वंस अगेन फिर दोबारा जा रहा हूँ, सबसे पहले ट्रस्ट था, ट्रस्ट से डेवलप हुआ क्या, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी से डेवलप हुआ इनिशिएटिव, इनिशिएटिव के बाद अगला जो चौथा पॉइंट है इंडस्ट्री, ये पॉजिटिव में। यदि नेगेटिव में जाए तो मिसट्रस्ट है, मिसट्रस्ट के बाद सेम और डाउट गया, सेम और डाउट के बाद गिल्ट, और चौथी स्टेज आ जाएगी इंफीरियोरिटी। इन दिस वे द फोर्थ स्टेज दैट इज फ्रॉम 5 to 12 years, 5 से 12 साल का समय होता है यह स्टेज के लिए बच्चे का। और आप जानते हो ये भी लेट चाइल्डहुड है, बचपन की अवस्था है, और इसमें जो है इस अवस्था को हम कह देते हैं परिश्रम बनाम हीनता, एंड इन इंग्लिश इट इज Industry versus inferiority. And what happens at this stage now, Lishan? Stage of life surrounding mastery of knowledge and intellectual skills. ज्ञान और बौद्धिक कौशल की महारत के आसपास जीवन का चरण। अरे बच्चा अपने आप खेलना शुरू कर देता है, बाहर भाग भाग करके जो है खेलना, और नई नई चीजों के लिए जो है नई नई जिज्ञासाएं जो है, परिश्रम करना, मेहनत करना। Next, sense of competence and achievement leads to industry. Yes, this is one of the most important point, कि सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस एंड अचीवमेंट लीड्स टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में यहाँ फैक्ट्री से मतलब नहीं है, इंडस्ट्री का मतलब है परिश्रम से। क्षमता और उपलब्धि की भावना उद्योग की ओर ले जाती है, परिश्रम की ओर ले जाती है, किसकी ओर, उद्योग की ओर, ठीक है, परिश्रम की ओर। Next, feeling incompetent and unproductive, it leads to inferiority. और यदि जो है इनकम्पिटेंट, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, तो उससे क्या होगा, अनप्रोडक्टिव,
ठीक है, अक्षम और अनुत्पादक महसूस करने से हीन भावना पैदा होती है। तो किससे इंडस्ट्री में की ओर गया और किससे इंफीरियर की ओर गया। तो इस स्टेज में क्या होता है, At this stage, the peer groups begin to take greater significance and their competence will help them gain a sense of self-esteem. They also compare themselves with their peers and have the need to validate their competence. Competence is demonstrated by building skills, applying them to make things and getting results. और यहाँ पर जो है क्या कॉम्पिटेंस, ठीक है, उस कुशलता, उसका बहुत बड़ा महत्व है। आपने भी सुना होगा बच्चे जो है, अरे उसने वो किया मैंने नहीं किया, मैंने किया उसने नहीं किया, मैं कर सकता हूँ वह नहीं कर सकता, मेरे इतने मार्क्स से उसके नहीं है, ये सारी चीजें। यदि इस तरह से कॉम्पिटेंस अच्छी तरह से आगे डेमोस्ट्रेट हो रहा है तो उससे क्या होगा, स्किल का डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट से, स्किल डेवलपमेंट कुशलता से, ठीक है, और किस तरह से क्या रिजल्ट अच्छा निकलेगा, उससे कॉम्पिटेंस आगे और डेवलप होता जाएगा, या कॉम्पिटेंस को या उसकी कुशलता को हम जो है क्या कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद अगली स्टेज आ जाएगी हमारी पांचवी, दैट इज द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। अभी तक बचपन था, पहले इन्फेंट था, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, अब इसके बाद आ गया एडोलेसेंस, किशोरावस्था। और इसमें जो नाम दिया है एरिक्सन ने, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन। मोस्ट इंपोर्टेंट, जीवन का वह समय जहां पर कि बहुत बड़े स्टॉर्म एंड स्ट्रेसेस रहते हैं, हिंदी में कहते हैं पहचान बनाम भ्रम, ठीक है। तो एंड एट दिस स्टेज क्या होता है, Developing a sense of who one is and where one is going in life. यस, जीवन में कौन है और कहाँ जा रहा है, इसका बोध विकसित करना, कि बच्चे को किशोर जाना का क्या करना है, कैसा करना है, किशोर जो है। नेक्स्ट है आपका Successful resolution leads to positive identity. सफल संकल्प सकारात्मक पहचान की ओर ले जाता है। इसीलिए इस स्टेज में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन में अंतर हमारे जो है, एक बार जो है उनसे भैया हैं, पुनीत भैया ने बताया था कि मोटिवेशन मीन हमारा बाहर की ओर, इंस्पिरेशन मीन अंदर की प्रेरणा। तो बाहर से उसको लीड करना कि किस तरह से क्या होगा। जैसे अब आप बोलते हो ना, क्या बोलते हो, यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो। यदि आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री लिया तो यहाँ लिया जाओगे। यदि आप ह्यूमैनिटी ग्रुप ले रहे हो तो ये करोगे, म्यूजिक ले रहे हो तो ये करोगे। तो ये मोटिवेशन, इससे जो है क्या होगा, वह बच्चा समझ जाएगा और उसमें मेहनत किया, मेहनत करने के बाद जो है वो सक्सेसफुल हुआ तो वह अपनी एक पहचान बना लेगा। तो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन लीड्स टू पॉजिटिव आइडेंटिटी, सफल संकल्प सकारात्मक पहचान की ओर ले जाता है। लेकिन उसके नेगेटिव में क्या होगा, Unsuccessful resolution leads to identity confusion or a negative identity. असफल संकल्प पहचान भ्रम या नकारात्मक पहचान की ओर ले जाता है। तो आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन का मतलब ही यही है, क्योंकि बच्चे ने इनिशिएट लिया, उसके बाद परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद वह सफल हुआ, उसकी एक पहचान बनी, लेकिन उसके नेगेटिव एस्पेक्ट में गए तो उसके बाद उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। दैट मीन वो समझ नहीं पाएगा। जैसे हम अपनी लाइफ में बारे हम अपना लक्ष्य पता नहीं कि जीवन क्यों है, जीवन किस लिए है, जीवन में क्या करना है, या हम ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे ये हमारे कोई वो नहीं, ठीक है जी ये कर लो, जाए कंफ्यूज। Therefore make a motive that what you want to do, what you want to be, ठीक है। तो उससे वो कंफ्यूजन दूर होगा तो आपकी पहचान बनेगी। यस, जैसे मैं कहता हूँ डॉक्टर उमेश इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन गोल्डफील्ड कॉलेज, एक आइडेंटिटी बन गई, पहचान बन गई यहाँ से जो है, क्योंकि धीरे धीरे करके जैसे इसी तरह से कहीं न कहीं किसी किसी क्षेत्र में उसकी पहचान बनेगी। कब, जब वो इनिशिएट करेगा, पहल लेगा, इंडस्ट्री मेहनत करेगा, मेहनत के बाद सफल होगा और उसके बाद आइडेंटिटी उसकी पहचान जरूर बनेगी। तो क्या होता है इस स्टेज में, सक्सेस। हाँ, Success in this stage pertains to developing a strong sense of identity and their ability to take challenges while committing to their ideals, principles, and failing to establish an identity at this stage can lead to being a young adult,
confused about their future, and also become susceptible to the ideas of influential people. Success in this stage leads to the virtue of fidelity. The individual is capable of successfully abiding by society's standards and expectations. The personal identity acquires and creates a sense of self that will endure throughout the lifetime. तो इस तरह से क्या सक्सेस इन दिस स्टेज pertains a developing a strong sense of identity and their ability to take challenges while committing to their ideals, principles and beliefs. अपने आइडियल्स, आदर्श, अपने सिद्धांत और अपने बिलीफ, विश्वासों को लेकर के वो जो भी उसके साथ कोई भी रिस्क है, कोई भी चैलेंजेस है, उसको स्वीकार करता है. यस, आई कैन डू, आई हैव द एबिलिटी, क्योंकि ट्रस्ट से उसको डेवलप हुआ है. ठीक है, और ट्रस्ट से क्या बना, उसके बाद इनिशिएट किया उसने, इनिशिएट पहल किया, पहल करने के बाद उसने क्या किया, इंडस्ट्री, मेहनत की, मेहनत करने के बाद फिर क्या किया उसने, मेहनत करने के बाद उसकी आइडेंटिटी, पहचान बन गई, पहचान बनने के बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट हम जो है छोड़ गए थे, जो है कौन सा, ऑटोनॉमी. ट्रस्ट से क्या हुआ, ऑटोनॉमी डेवलप हुई, ऑटोनॉमी के बाद इनिशिएटिव हुआ, इनिशिएटिव इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद यहाँ पर पहचान बनी, और पहचान बनने के बाद जो है क्या हुआ कि वह अपने सिद्धांत, अपने और किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने की उसमें पावर आ जाती. लेकिन यदि हम नेगेटिव ट्रेड की जाएं तो उसमें कंफ्यूजन होगा, और जिससे वह समझ भी नहीं पाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना. बिकम सस्पेक्टिव, शक, what we do and what we don't do. Success in this stage leads to virtue of fidelity. इसलिए वह उसमें अपने आपको तुच्छ समझेगा, बेकार समझेगा. That is, I am the fiddle. I can't do. I don't have the ability. This individual is capable of successful abiding by society's standard and expectation. समाज ने हमारे लिए कुछ मूल्य, कुछ तत्व निर्धारित किए हैं. उन मूल्यों, उन तत्वों को जो स्वीकार करना और उनको अपने में बांधे रखना और उनके हिसाब से चलना. The personal identity acquires and creates a sense of self and endure throughout the lifetime. और यहाँ पर जो इस स्टेज में जो डेवलप हो गया वह उसके पूरे जीवन भर रहेगा. हम कहना चाहिए कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. जो हम छोटी छोटी अपनी आदतें बना देते हैं, छोटी छोटी चीजें जो करते हैं वो हमारी आदत में शामिल हो जाती है और वह हमारी जो है फिर क्या पूरी आदत बन जाती है. इसलिए कहा है, क्या कहा है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. तो यही छोटी छोटी चीजें हमें जो है बचपन से बच्चों को उनको सिखाना और उस हिसाब से उनको ट्रीट करना. पॉजिटिव ट्रेड्स की. नाउ द सिक्स्थ स्टेज गोज अबाउट द Young adulthood. that is from 18 to 40 years. एडोलेसेंस की एज को भूलना मत. ठीक है, 12 से 18 साल. अब ये 18 साल से जो है एडोलेसेंट के बाद अर्ली एडल्टहुड में आ गई, और इसकी जो नाम दिया है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. इंटीमेसी, दैट इज अंतरंगता बनाम अलगाव. इंटीमेसी, एक दूसरे से मिलना, उससे बातें करना और उसके भाव जानना, अपने भाव उसको बताना. ठीक है, या फिर अलग रह जाना. आइसोलेशन मीन न किसी से बात करना, न कुछ करना, अपना पढ़े रहे, जो है अपना अलग ही रहे, कहीं भी जाना है तो कुछ नहीं, चुपचाप अलग से बैठे रहे. तो दिस इज द सिक्स्थ स्टेज. यह डेवलप हो गया आपके पहले से ही जो है उसी से. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टाइम फॉर शेयरिंग वनसेल्फ विद अनदर पर्सन. इसमें जो है अगर इंटीमेसी है तो एक व्यक्ति अपने जो भी जो है अपना अनुभव है उसके साथ दूसरे से शेयर करेगा, किसी अन्य व्यक्ति के साथ खुद को साझा करने का समय. नेक्स्ट, कैपेसिटी टू होल्ड कमिटमेंट्स विद अदर्स लीड्स टू इंटीमेसी. दूसरों के साथ प्रतिबद्धताओं को रखने की क्षमता अंतरंगता की ओर ले जाती है. दैट मीन जैसे आपने कहा था कि आपको ये करना है, दैट मीन मैं कर रहा हूँ, इंटीमेसी बढ़ेगी उससे. नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, आई डोंट वांट टू डू, मुझे क्या लेना देना, आइसोलेशन की ओर ले जाएगी. नेक्स्ट है आपका फेलियर टू एस्टैब्लिश कमिटमेंट्स लीड्स टू फीलिंग्स टू यस, आइसोलेशन. दैट इज कमिटमेंट्स, प्रतिबद्धता. प्रतिबद्धताओं को स्थापित करने में विफलता अलगाव की भावनाओं को जन्म देती है. अलगाव मीन आइसोलेशन. दैट मीन आई डोंट वांट टू मिक्स टू अदर्स, आई डोंट वांट टू शेयर द फीलिंग माय फीलिंग्स टू अदर्स, आई डोंट वांट टू टेक अदर्स फीलिंग टू इन दिस वे. तो यहाँ पर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. The virtue of love developed during this stage.
और इस स्टेज में कौन सा गुण उत्पन्न होता है? वह है आपका प्यार का, प्रेम का, लव का। Stage helps young adults to offer both emotional and physical love and accept the same in return. तो इस तरह से इससे क्या होता है? दोनों चीजें, इमोशनल एंड फिजिकल लव, ठीक है, शारीरिक प्यार और साथ में क्या? इमोशनल, संवेगात्मक प्यार। इससे क्या होगा? और वह उसको शेयर करेगा, लेगा भी और देगा भी। और ये स्टेज की बहुत बड़ी विशेषता है। आपने देखा होगा कई जो है बच्चे आपस में बैठे रहते, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना, अपने दुखों को शेयर करना, दूसरे के सुखों को शेयर करना और उनके साथ उनके सॉल्यूशन के लिए बातें करना। ये सारी चीजें जिसके कारण होगी, दिस विल बी ड्यू टू द इंटीमेसी। इंटीमेसी नहीं है तो ना आप अपनी बात कह पाओगे, न दूसरे की बात को सुन पाओगे। तो इससे क्या होगा? They also become good at forming healthy reciprocal relationships with others. और इससे जो है एक दूसरे के साथ जो अपना जो रेसिप्रोकल, एक दूसरा, दैट विल बी अ गुड रिलेशन। नेक्स्ट है आपका सेवंथ स्टेज, देन इट गोज टू द मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड, ठीक है, मध्य वयस्कावस्था। तो वयस्कावस्था यह आपकी 40 से 65 साल, 40 to ठीक 65 है, years. जहां पर एक परफेक्ट जेंटलमैन या ह्यूमन बीइंग है, ये आपका 40 से 65 साल। तो उसमें उत्पत्ति बनाम ठहराव। Generativity versus stagnation. जनरेटिविटी इज अ वर्ड दैट हैज बीन मेड फ्रॉम द जनरेशन। उत्पन्न करना, जनरेट करना, उससे जनरेटिविटी बना हुआ है। तो इसमें क्या है आपका? Caring for other in family, friends, and work leads to sense of contribution to later generations. परिवार, दोस्तों और काम में दूसरों की देखभाल करने के बाद की पीढ़ियों के लिए योगदान की भावना पैदा करना, कंट्रीब्यूशन क्या हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है Stagnation comes from a sense of boredom बोर्डम and meaningless. तो ठहराव, बोरियत और अर्थहीनता की भावना से आता है। तो यहाँ पर मैंने बोला जनरेटिविटी, जैसे पानी एक जगह रुका रहता तो वो सड़ जाता है। नदी का पानी कभी सड़ता नहीं, स्टैग्नेंट नहीं होता, ठीक है, ये कुछ न कुछ आगे करता था। जनरेटिविटी, एक रिवर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, पहाड़ों से निकला, सबको जो सिंचाई देता गया, कहीं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, नॉट ओनली द एनिमल बट प्लांट्स आल्सो, दे डेवलप द अर्थ, दे जनरेट द अर्थ, किससे? उस बहते हुए पानी। लेकिन एक जगह पानी रुक गया तो वो सड़ता जाएगा, उसके अंदर जो मछलियां होंगी वो भी सड़ जाएंगी, पेड़ पौधे होंगे वो भी सड़ जाएंगे। इसीलिए यह स्टेज क्या है? मिडिल एडल्टहुड की, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। स्टार्ट वहीं से होगा, ध्यान रखना। जब तक हम अपनी शेयरिंग नहीं करेंगे तो फिर आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और शेयरिंग नहीं करेंगे तो जनरेटिविटी आएगी, शेयरिंग है तो नहीं है तो स्टैग्नेशन। तो स्टैग्नेशन कम्स फ्रॉम ए सेंस ऑफ बोर्डम एंड मीनिंगलेसनेस। ठहराव, बोरियत और अर्थहीनता की भावना से आता है। तो इसमें करता क्या है आदमी? अब ये देखिए जो है, क्योंकि अब आदमी है 40 से 65 साल लिखा हुआ, देखिए 40 से 65 साल, क्या क्या करता है? Accept children's mates and friends. चिल्ड्रन, बच्चों के जो दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं उनको एक्सेप्ट करना। Achieve mature civic and social responsibility. ठीक है, मैच्योर, परिपक्व और सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेना। Adjust to physical changes of middle age. और जो मिडिल एज के उनके साथ जो अपना जो भी चेंजेस हैं उनको एडजस्ट करना। Be proud of accomplishment of self-made spouse. पत्नी है या फिर जो है सेल्फ, अपने आप को जो भी पूर्ण करना उसको, और प्राउड, गर्व महसूस करना। Create a comfortable home. एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल होम को क्रिएट करता है। Develop a sense of unity with mate. अपने दोस्तों के साथ उनसे सेंस ऑफ यूनिटी, हम एक हैं, इसका सेंस डेवलप करना। Help growing and grown children to be responsible adults. और बच्चों की भी हेल्प करता है, उन छोटे बच्चों, बड़े बच्चों, सबकी की वह एक रेस्पॉन्सिबल एडल्ट बने, ठीक है। 40 से 65 साल ये आपने करना होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या क्या आपने करना है? Maintain healthy life patterns. पैटर्न्स, अपने जीवन के लिए जो हेल्दी पैटर्न्स उनको मेंटेन करना। रेलिंक्विश सेंट्रल रोल इन लाइफ ऑफ ग्रोन चिल्ड्रन, जो बढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक सेंट्रल बिंदु, केंद्र बिंदु की तरह से काम करना। रिवर्स रोल विथ एजिंग पेरेंट्स, ठीक है, एजिंग पेरेंट्स, जो पेरेंट्स एजिंग है उनके साथ रहो। यूज लेजर टाइम क्रिएटिवली, यूज लेजर टाइम क्रिएटिवली, और रचनात्मक तरीके से अपने जो समय है, खाली समय है,
जिसे हम हॉबी कहते हैं, अच्छी हॉबी को डेवलप करता है। तो इस तरह से इस एज में Upon achieving the major milestones in life, they are able to offer strong support to their children, their community, and society. Failure to complete the stage results in a midlife crisis and struggle to find a new purpose in life, which can lead to stagnation. तो इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते व्यक्ति जो है यदि अच्छे काम करता गया, ट्रस्ट के बाद सीधे ऑटोनॉमी और आगे आगे इंडस्ट्री, इनिशिएट इंडस्ट्री, ठीक है, ये सब चलता गया, तो उसके बाद वह अपने बच्चों को और समाज को एक बहुत अच्छा माइलस्टोन देता है, एक बहुत अच्छा सहारा देता है। लेकिन यदि वह अपने इस लक्ष्य में सफल नहीं हो पाता है, अपोजिट ट्रेड आ रहे हैं, तो वह जो है क्या करता है, अपनी लाइफ से स्ट्रगल करता है। अरे यार, ये जिंदगी तो नरक बन गई, क्या बताऊं, इस जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, अदरवाइज क्या, आई डिड इट। तो इस तरह से वह ढूंढता है कि अब क्या करें, नई नई चीजें ढूंढेगा, ये नहीं तो चलो ये करते हैं जो है, ठीक है, करेगा कुछ नहीं, केवल दीवा स्वप्न, ठीक है, डे ड्रीमिंग जिसे कहते हो। एंड आफ्टर दैट, ऐसा करते करते उसके 65 साल गए, व्यक्ति का जीवन चला गया, कब पता नहीं चला, जो है 7 स्टेजेस पूरी होगी, अब आ गई 8वें स्टेज। नाउ इट इज द 8th स्टेज, द स्टेज इज द लेट एडल्टहुड टू डेथ, जिसे हम वृद्धावस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धावस्था। और इस एज में डेवलप होता है आपका इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अखंडता बनाम निराशा। क्या होता है इस लाइफ में? Successful resolutions of all previous crises leads to integrity and the ability to see broad truths and advise those in earlier stages. पिछले सभी संकटों के सफल समाधानों से सत्यनिष्ठा और व्यापक सत्य को देखने और पहले के चरणों में लोगों को सलाह देने की क्षमता पैदा हो जाती है। यदि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल एक अचीवर्स हैं, तो आप अपनी कहानियां कहोगे, लोग हाँ हाँ, यस आई डिड इट, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, समाज को ये दिया, अपने परिवार को दिया, देश के लिए ये किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के लिए मैंने ये किया। और ये तब जो है क्या, इंटीग्रिटी, सारे जितने पिछले सबको इंटीग्रेट करना, जोड़ना उनको अपने व्याख्यान के द्वारा। लेकिन despair arises from feelings of helplessness and the bitter sense that life has been incomplete. यस, लेकिन यदि अपनी लाइफ में जो है क्या, वहां पर स्टैग्नेशन में चले गए, इसमें चले गए स्टैग्नेशन पर, ठहराव में चले गए, तो आपकी लाइफ क्या होगी? बिल्कुल निराशा, डिस्पेयर। तो डिस्पेयर arises from feeling of helplessness and the bitter sense that life has been incomplete. निराशा असहायता की भावनाओं से उत्पन्न होती है और यह कड़वा भाव ही जीवन अधूरा है। फिर जो है माथा पीटते गए, मैं तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, जहां इंटीमेसी करनी थी वहां आइसोलेशन हो गया है। क्यों? स्टार्टिंग वही ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट से स्टार्ट हुआ, और इस तरह से जीवन जो है क्या, पूरा निरर्थक चला जाएगा। जो सार्थक जीवन होना चाहिए वह निरर्थक हो जाएगा। द सक्सेसफुल लाइफ देयर विल नॉट एग्जिस्ट। वहां पर सिर्फ जो है क्या होगा, डिस्पेयर ही डिस्पेयर रहेगा। उसके बाद जो है अगली, तो इस स्टेज में आगे क्या होगा? Having successfully resolved the crisis from the previous stage, individuals at this stage have the wisdom to guide younger generations. They are also characterized by broad-mindedness, composure, and peace of mind. They are also capable of reflecting positively on their lives in the face of death. इस तरह से जो हमारे जो पॉजिटिव ट्रेट है उनको डेवलप करते करते मनुष्य एक सफल जीवन की ओर चला जाता है, और सफल होकर के वह अपने अनुभवों को आने वाली जनरेशन को बताता है, अपनी भावी पीढ़ी को बताता है, समाज को बताता है, और एक उनको कहता है ब्रॉड माइंड के लिए, नॉट नैरो माइंड, कंपोजर एंड पीस ऑफ माइंड, माइंड का बिल्कुल पीस। दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग पॉजिटिव ऑन देयर लाइफ इन द फेस ऑफ डेथ। मृत्यु तक यह कहता है, यस आई डिड इट। तो इस तरह से हम कहते हैं एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज द थ्योरी दैट पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑकर्स इन ए प्री डिटरमाइंड ऑर्डर। जो पहले से डिटरमाइन है, पहले से निर्धारित है,
कहाँ से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द पेरेंट्स, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट से ही, ट्रस्ट से ही ऑटोनॉमी आई। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे जो ट्रेड डेवलप होते गए। It is a built on success of a previous stage and is an essential component of the psychological development of people. Psychosocial development of people. Psychosocial development. Going through each stage builds an essential virtue that help people navigate the complexity of life. इस तरह से वन बाय वन हमारे जो है ये थ्योरीज के हिसाब से ये सारे जो हम चलते गए और क्या होगा कि हमारी 8 की 8 स्टेज पूरी हो जाएंगी। किस स्टेज हमने क्या किया, ये पूरा कंप्लीट जो है डिस्कशन यहाँ पर एरिक एरिक्सन ने दिया हुआ है। एक बार आगे इम्प्लीकेशंस में जाने से पहले एक बार थोड़ा सा आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा टाइम है हमारे पास। ठीक है,